السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دفاعی تنصیبات پر مشتعل حملوں میں ملوث شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے۔ قومی اسمبلی نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں اور سرکاری املاک جلانے کی مذمت کے لیے قرارداد منظور کی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے جمعرات کو یوم تکریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی و خوشحالی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صدر نے آلودگی پر قابو پانے کے لیے ملک میں صاف اور ماحول دوست ذرائع آمد و رفت کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ فسطائی مودی حکومت کی جانب سے سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس کے خلاف آج کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیریوں نے مکمل ہڑتال کی۔ وزیر خارجہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک ان کی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سری نگر میں بھارت کی طرف سے گروپ 20 کے اجلاس کے خلاف آزاد جموں کشمیر کے تمام بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج کوئٹہ میں 34ویں قومی کھیلوں کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا۔ پاکستان نے ہانگ کانگ میں خواتین کی تیسری ایشیائی بیس بال چیمپئن شپ میں جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سری لنکا کو 21-3 سے ہرا دیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث بلوائیوں کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے، جبکہ دیگر کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج شام قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مسلح افواج کی قربانیوں اور کردار کو تسلیم کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ آج انہوں نے 19 سال بعد کوئٹہ میں قومی کھیلوں کا افتتاح کیا اور یہ خواب سیکیورٹی فورسز کی کوششوں سے ہی شرمندہ تعبیر ہوا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں رواں ماہ کی 9 تاریخ کے دل دہلا دینے والے اور شرمناک واقعات کی مذمت کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ ان واقعات سے ملک کے تشخص کو نقصان پہنچا۔ ایوان نے مسلح افواج پر مکمل اعتماد، یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جرم کے لیے اکسانے والوں، منصوبہ بندی کرنے والوں، سہولت کاروں اور جلاؤ، گھیراؤ اور فوجی تنصیبات اور سرکاری اور نجی املاک کی توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کے خلاف ملک کے موجودہ قوانین کے مطابق مقدمات چلائے جانے چاہیے۔ ایوان نے تمام متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے اندر اور باہر سے مختلف لوگوں کی سرپرستی اور سہولت کاری میں ملکی اداروں کے خلاف شروع کیے گئے پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کو نافذ کریں۔ ایوان نے مولانا عبدالاکبر چترالی کی طرف سے پیش کی گئی ایک اور قرارداد کی بھی منظوری دی جس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق پر خودکش حملے کی مذمت کی گئی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وزارت اطلاعات و نشریات قومی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے اور ملک کے اندر اور باہر پاکستان کا مثبت ترقی پسندانہ اور جمہوری تشخص اجاگر کر رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکرٹری محمد شہباز بابر نے آج وقفہ سوالات کے دوران سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان سمیت وزارت کے ملکہ ادارے اور محکمے قومی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی نشریاتی ہونے کی وجہ سے ریڈیو پاکستان مختلف زبانوں میں ملک کے خلاف پروپیگنڈے کا مقابلہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پلیٹ فارمز مضبوط ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حامل ادارے ہیں۔ بڑی فوج کی سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مضبوط فوج ملک کی سلامتی اور یکجہتی کی ضامن ہے۔ انہوں نے یہ بات آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقسیم اعزازات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں اور غازیوں کی خدمات ہمارا گراں قدر اثاثہ ہے۔ جنرل منیر نے کہا کہ ہم اس آزاد سرزمین میں شہداء کی عظیم قربانیوں کی بدولت سانس لے رہے ہیں۔
उन्होंने कहा कि पाक फौज बतौर इदारा हमेशा शहदा और उनके लवाहिकीन को याद रखती है। फौज के सरबराह ने कहा कि फौज का हर सिपाही और अफसर इलाकाई, लसानी और सियासी तासुबात को बलाए ताक रखकर अपने फराइज और जिम्मेदारियों को मुकद्दम समझता है। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ ने जुमेरात को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान किया। 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 22 अफसरों और जवानों को तमगा बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मेडल्स दिए गए। पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहदा के खानदानों ने तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने आज कोयटा में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की क़यादत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे के अवाम को रोजगार और तरक्की के मसावी मौक़े की फराहमी तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ कम करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता मौसम गर्मा के दौरान तबाहकुन सैलाब के मौके पर वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों की तरजीही बुनियादों पर बहाली यकीनी बनाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता साल के सैलाब के दौरान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के अरकान ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। उन्होंने सूबाई क़यादत को पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी की आला क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। बलूचिस्तान के गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने आज कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और वफाकी हुकूमत के ताउन से ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आलूदगी में कमी और पाकिस्तान को साफ सुथरा मुल्क बनाने के लिए शफाफ और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फरोग देने पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तैयार करने वाली मकामी कंपनी के वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से कार्बन के अखराज, माहौलियाती आलूदगी और फॉसिल ईंधन के लिए पाकिस्तान के दरामदी बिल में कमी लाने में मदद मिलेगी। सदर ने कारोबारी बिरादरी पर जोर दिया कि वो सनत की अपग्रेडेशन और जिद्दत पर तवज्जो दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बिल मजरिया 2023 की मंजूरी दी। उन्होंने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल की मंजूरी दी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। फिस्ताई मोदी हुकूमत की जानिब से श्रीनगर में ग्रुप 20 के इजलास के खिलाफ आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने मुकम्मल हड़ताल की। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की थी और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने इसकी हिमायत की। श्रीनगर में डल झील के किनारे तकरीब के इर्द गिर्द भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एलीट नेशनल गार्ड्स और कमांडोज की भारी नफरी तैनात की गई। दुकानदारों बिलखुसूस लाल चौक, रेजिडेंसी, बिटशाह चौक, माईसुमा और श्रीनगर के दीगर इलाकों के दुकानदारों को अपनी दुकानें खुली रखने के हुक्म की तामील न करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी गई थीं। ताहम धमकियों की परवाह न करते हुए कश्मीरी ताजिर बिरादरी ने आज अपनी दुकानें बंद रखी। ट्रैफिक की नकलो हरकत कहीं नजर नहीं आई। लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया। उधर चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया और मेक्सिको समेत ग्रुप 20 के कई ममालिक ने इजलास में शिरकत नहीं की। आज इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने मसले कश्मीर को हक़ खुदरादियत के जरिए हल करने पर जोर दिया। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में एक याददाश्त पेश की जिसमें एंटोनियो गुतेरेस की तवज्जो मुतनाज़ा इलाके में G20 के इजलास के भारतीय हुकूमत के मज़मूम इक़दाम और कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद पर उनके संगीन असरात की तरफ मबजूल कराई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भारत के शहर बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को बदनाम ज़माना अमरीकी फौजी जेल गुआंतानामो बे में तब्दील कर दिया है। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास के खिलाफ पूरे यूरोप बिलखुसूस बरतानिया में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ग्रुप के इजलास की मजम्मत के लिए ग्लासगो, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, नेल्सन, लोटन और बर्मिंगम में भी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मसले को
पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में बुनियादी हैसियत हासिल है और रहेगी। उन्होंने आज मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत मिलने तक उनकी गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। I am here today to express solidarity with the people of Kashmir at this critical juncture. Mr. Speaker, Jammu and Kashmir dispute is the unfinished agenda of the partition of the subcontinent. The rights and aspirations of the Kashmiri people were trampled upon by machinations and intrigue. The territory of Azad Jammu and Kashmir, where we congregate today, was liberated at the cost of enormous sweat and blood. We have not forgotten the massacre of Muslims in Jammu region in 1947. They were among the first martyrs of your movement. India will have to fulfill its obligations to the Security Council by granting the Kashmiri people their lawful right to self-determination. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाक़े में ग्रुप 20 इजलास के इनेकाद पर भारत की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक इजलास के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत से कहा कि वो अपने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करे, 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात वापस ले, जालिमाना क़वानीन ख़त्म करे और आलमी मुबस्सिरीन को खित्ते के दौरे की इजाज़त दे ताकि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को अपनी आंखों से देख सके। उन्होंने कहा कि हम भारत समेत अपने हमसाया मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ताहम पुरअमन ताल्लुकात की हमारी ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करते हुए श्रीनगर में भारत की तरफ से ग्रुप 20 के इजलास के खिलाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। इस हवाले से मजीद तफसील हमारे मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे बादशाह खान से। मकबूजा कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके G20 इजलास के इनेकाद के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में यौम एहतजाज मनाया गया। मुतनाज़ इलाके में G20 इजलास को मुस्तरद करते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का ख़ुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इजलास से खिताब करते हुए कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। यौम एहतजाज के मौके पर आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी जलसों, मुजाहिरों और रैलियों का इनेकाद किया गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम आज़ादी चौक में एक एहतजाजी जलसा मुनाकिद हुआ। जलसे के बाद एहतजाजी रैली निकाली गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान, सीनियर वज़ीर हुकूमत कर्नल वक़ार अहमद नूर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर ने मुजाहिरे की क़ियादत की। मुजाहिरीन ने G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। रैली के अख्तिताम पर UN मुबस्सिर मिशन के दफ्तर में एक याददाश्त भी पेश की गई। वाज़ेह रहे कि मकबूजा कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर है। वो कल बाग में एक एहतजाजी जलसे आम से खिताब करेंगे। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और असीर मरकजी कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की एहलिया मिशाल हुसैन मलिक की ज़ेर क़यादत भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ग्रुप 20 इजलास के खिलाफ आज इस्लामाबाद में एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में रैली में शरीक अफराद ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे। रैली 0 पॉइंट से शुरू होकर नेशनल प्रेस क्लब पर खत्म हुई। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके में ग्रुप 20 इजलास का इनेकाद मोदी हुकूमत की जानिब से आलमी क़वानीन की एक और खिलाफ वर्जी है। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे बिलाल महसूद से गुफ्तगू करते हुए मिशाल मलिक ने कहा, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं और ये जहाद मुसलसल है और आवाज उठाते रहना जब तक कि हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती। मोदी को बस यही है कि शोहदा के वारिस अभी जिंदा हैं और इंशाल्लाह ताला ये मुंह की खाएगा और जो भी हक और सच इस वक्त खड़ा है, चाहे वो कम है तादाद में, ये शुरू से कानून है कि जो हक और सच के साथ कम तादाद होती है मगर वही होती है जो इसको अल्लाह ताला एंड में फतह देता है।
اگلے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا یقین دلایا ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ٹیم معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انتھک کام کر رہی ہے. سیکریٹری اطلاعات و نشریات سہیل علی خان نے آج ریڈیو پاکستان کے کوئٹہ اسٹیشن کا دورہ کیا. اسٹیشن ڈائریکٹر انیس الرحمان نے انہیں پروگراموں اور شعبہ خبر کے حوالے سے اسٹیشن کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی. اس موقع پر سہیل علی خان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی عوام تک رسائی کا مؤثر ذریعہ ہے. انہوں نے کہا کہ جدید دور کے مطابق پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. سیکریٹری اطلاعات و نشریات نے بلوچی، پشتو، بروہی اور ہزارگی زبانوں سمیت خبروں اور حالات حاضرہ کے اسٹوڈیوز کا بھی دورہ کیا. خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں آج 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوئی. مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 35 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے. ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق پولیو مہم صوبے کے 12 اضلاع میں جاری ہے، جن میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، سوات، باجوڑ، ہنگو، کرک، خیبر، کوہاٹ، کرم، محمد اور اورگزئی کے اضلاع شامل ہیں. اس کے علاوہ اپر اور لوئر چترال اور دیر کے زیادہ رسک والے علاقوں میں بھی پولیو مہم چلائی جا رہی ہے. اس دوران پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 35 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. ہنگامی امدادی ادارے نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام کے لیے انڈونیشیا سے 15,900 غذائی پیکٹس اور نقد امداد وصول کر لی ہے. ان اشیاء کی حوالگی کی تقریب آج کینٹین سٹورز اپارٹمنٹ کراچی کی زونل دفتر میں ہوئی. واضح رہے کہ غذائی پیکٹس کی صورت میں یہ معاونت پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے جاری انسانی امداد کا حصہ ہے. یہ راشن پیک سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدگان میں پاک فوج کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انڈونیشیا کے قونصل جنرل ڈاکٹر جون کونکورو ہیڈنگرانٹ نے پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھنے کا یقین دلایا. پاک فضائیہ نے 1965 کے جنگی ہیرو شہید اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پرومو جاری کیا ہے، جنہوں نے 1965 کی جنگ میں دشمن کے خلاف اپنی بے مثال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا. اسکواڈرن سرفراز احمد رفیقی نے اپنے ساتھی پائلٹس کے ہمراہ دراندازی کرنے والے بھارتی فضائیہ کے 4 طیاروں میں سے 3 طیاروں کو مار گرایا تھا، جو 1 ستمبر 1965 کو چھمب سیکٹر میں 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے. 6 ستمبر 1965 کو لاہور کا دفاع کرتے ہوئے سرفراز احمد رفیقی نے پاک فضائیہ کے 4 جنگی طیاروں کی فارمیشن کی قیادت کی. ایک بھارتی طیارے کو مار گرانے کے بعد ان کے طیارے کی مشین گن جام ہو گئی. محاذ جنگ چھوڑ دینے کے بجائے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حملے جاری رکھنے کا حکم دیا اور عقب سے فارمیشن کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ان کی شاندار کارکردگی اور جرأت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ہلال جرأت اور ستارہ جرأت کے اعزازات دیے. یہ سے نشر کی جا رہی ہیں. اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں بالاتا پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید اور 6 کو زخمی کر دیا. اسرائیلی فوج نے مذکورہ کیمپ پر دھاوا بول دیا اور کئی گھروں کا محاصرہ کر لیا. رواں سال کے آغاز سے اب تک اسرائیلی فوج 26 بچوں سمیت کم از کم 156 فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے. جنوبی کوریا اور یورپی یونین نے اپنے اعلیٰ سطح کے سفارتکاروں کے درمیان حکمت عملی مکالمہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ سلامتی کی شراکت داری کو ترقی دی جا سکے. سول میں ایک اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ رہنما موسمیاتی تبدیلی، صحت اور سپلائی چین جیسے شعبوں میں تعاون قائم کرنے کے حوالے سے بھی متفق ہو گئے ہیں. جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول نے سول میں یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لیان اور یورپی کونسل کے صدر چارلز مائیکل کے ساتھ اجلاس منعقد کیا تھا. سری لنکا درخواست گزاروں کو 3 دن کے اندر نئے پاسپورٹ جاری کرے گا. عوامی سلامتی کے وزیر ٹیرین ایلس نے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بتایا کہ درخواست گزاروں سے صرف دفتری اوقات میں رابطہ کیا جائے گا.
रूसी फौज आइंदा माह की पहले तारीख तक बाखमत शहर का कंट्रोल बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेगी। रूस के वैगनर ग्रुप के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन ने एक बयान में कहा कि उनकी फौज जुमेरात को शहर का कंट्रोल रूसी फौज के हवाले करने का अमल शुरू कर देगी। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाए। चीन के वजीर खारजा माओ निंग ने यह बात अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मशवरे के जवाब में कही। अमेरिकी सदर ने कहा था कि अमेरिका और चीन ताल्लुकात में जल्द तब्दीली आ सकती है। अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मैरैप ने इस मौके पर अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुआहदे से दोनों मुल्कों की शराकतदारी और ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें तस्कीन जफर से। खेलों की खबरों में सबसे पहले कोयटा में होने वाले 34वें कौमी खेलों के हवाले से खबर। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज कोयटा में 34वें कौमी खेलों का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों की खेलों में इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाएगी। आज कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने मिलकर पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप तकसीम किए और स्कूल बनाए, दानिश स्कूल बनाए, खेलों के मैदान सजाए, हॉकी के मैदान सजाए, क्रिकेट के मैदान सजाए। इसी तरीके से हाई अचीवर्स को इनामात दिए गए पूरे पाकिस्तान में। इसी तरीके से मैं आज ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खेलों के मैदान में भी वफाकी हुकूमत और मैं खुद पूरी तरह हम इस बात पर सहमत हैं कि जितने भी वसाइल हम आपके कदमों में निछावर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों, कोचेज और इंतजामिया को नेशनल गेम्स की तकरीब में खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए अजीम खिलाड़ियों, कोचेस, कौम के बेटियों जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से न सिर्फ पाकिस्तान में आपने अपना नाम रोशन किया बल्कि बैरूनी ममालिक में आपने मुमताज पोजीशंस हासिल करके पाकिस्तान के सरसब्ज हिलाली झंडे को और ऊंचा किया। मैं आज अपनी तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और बलूचिस्तान के वजीर आला को और बलूचिस्तान के गवर्नर को और इंतजामी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान ने आज अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 21-3 से हराते हुए 30वीं एशियन विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप में कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज अपने पहले मैच में मेजबान हांगकांग को 16-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच मंगल को इंडोनेशिया के खिलाफ खेलेगा। पुलिस ने अयूब स्टेडियम कोयटा में कौमी खेलों के मर्दों के फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पाक फजाइया को 3-0 से हराकर पहली मरतबा टाइटल जीत लिया। शायकीन से खचाखच भरे स्टेडियम में मोहम्मद हनीफ ने मैच के 14वें मिनट में पुलिस को बर्तरी दिला दी, जबकि मोहम्मद वासे ने 20वें मिनट में गोल करके बर्तरी को 2-0 कर दिया और 75वें मिनट में अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल करते हुए फतह पर मोहर सब्त कर दी। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा के PSLB हॉल में 34वें कौमी खेलों में पाक फौज और पंजाब की टीमों के दरमियान पहले मैच से बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज होगा। आज से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में 34वें कौमी खेलों के टेनिस टूर्नामेंट में पंजाब और नेवी ने अपने इफ्तिताही मैच जीत लिए। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने खित्ते में पाकिस्तान के पहले एथलेटिक्स लीडरशिप प्रोग्राम के इजरा के लिए आज एसेंट एथलेटिक्स के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। ये थी कुछ खेलों के हवाले से खबरें। आइए अब आपको नईम जुबैरी की जानिब लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं तिजारत की दुनिया का अहवाल। पंजाब की सनत और तिजारत और तवानाई के निगरां वजीर SM तनवीर ने आज लाहौर में ज़राअत के बारे में टास्क फोर्स के पहले इजलास की सदारत की। इजलास में ज़राअत के फरोग के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर सूबाई वजीर ने कहा कि ज़रई शोबे में भरपूर सलाहियत मौजूद है, जिससे अरबों डॉलर गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबा मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए तमाम दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इसे फरोग देना चाहिए। SM तनवीर ने कहा कि ज़राअत के बारे में टास्क फोर्स पर जोर दिया कि जदीद ज़राअत को फरोग देने और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए अमली इक़दामात करे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 404 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 41,195 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 97 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 314 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। नेस्ले पाकिस्तान कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 170 रुपए 42 पैसे का इजाफा, जबकि पाक टोबैको के हिस्से की कीमतों में 51 रुपए 49 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 282 रुपए 94 पैसे और कीमत फरोख्त 289 रुपए 16 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 352 रुपए 51 पैसे और 360 रुपए 33 पैसे, यूरो 306 रुपए 78 पैसे और 312 रुपए 95 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपए 44 पैसे और 77 रुपए 13 पैसे, यूएई दिरहम 77 रुपए 55 पैसे और 78 रुपए 76 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 2 रुपए 5 पैसे और कीमत फरोख्त 2 रुपए 10 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,03,446 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,22,818 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,24,718 मीट्रिक टन बरामदी और 98,100 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें, और तिजारती खबरों के बाद सुनते हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक़। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने बर्रे सगीर में इशात इस्लाम में सूफियाए कराम के किरदार के नाम से आज एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मुकर्ररीन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बर्रे सगीर में इस्लाम की इशात में सूफिया के किरदार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह और तबलीग दीन का तस्करा उनके जिक्र के बगैर अधूरा रहता है। और अब बात करते हैं ईद उल अज़हा पर एक पाकिस्तानी फिल्म जो रिलीज होगी। पाकिस्तानी फिल्म है तेरी मेरी कहानियां, जिसमें नुमाया अदाकार अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। पाकिस्तान की फिल्मी सनत अपने आप को बहाल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। गुज़श्ता साल मशहूर फिल्म मौला जट ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की थी, जिससे फिल्मसाजों और हिदायतकारों को नई फिल्में रिलीज करने की तहरीक मिली थी। फन की दुनिया से कुछ खबरें आपने सुनी, और आइए अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। दुनिया भर की 50% से ज्यादा बड़ी झीलें अपने पानी से महरूम हो रही हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक दुनिया भर की 53% ताज़ा पानी की झीलें तनज़्ज़ुल का शिकार हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इस बिगाड़ की बड़ी वजह बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और गैर जरूरी तौर पर इंसानों की तरफ से पानी का इस्तेमाल है। इस तहकीक में बरसों पर मुहित सैटेलाइट्स का डेटा बरूएकार लाया गया, जिसमें बड़े आबी जखीरों और झीलों की पानी की सतह नोट की गई। शरियानों की सख्ती नौजवानों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए खतरे का उनसर साबित हो सकता है, जिससे कई बीमारियां लायक हो सकती हैं, जिनमें ज़ियाबीतस टाइप 2, अमराज क़ल्ब और क़ब्ल अज़ वक्त मौत शामिल हैं। ये तहकीक अमरीकी तिब्बी जरीदे में शाया हुई है। ये तहकीक बरतानवी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड ने मुश्तरका तौर पर की है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहा। तहम पाराचनार, कलात और दीर में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा पाराचनार में 3 मिलीमीटर, दीर में 1 मिलीमीटर, बलोचिस्तान और कलात में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हालात में जैकबाबाद 47, दादू 46, रहीम यार खान, मौजूदाड़ो, जेलम, जीआई खान और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हालात में इस्लामाबाद 41, मरी 28, लाहौर 44, कराची 35, पेशावर 41, कोयटा 35, मुजफ्फराबाद 41, गिलगित 35, अस्करदू 28, श्रीनगर 30, जम्मू 42, लेह 22, पुलवामा 30, अनंतनाग 30 और शोपियां में ज्यादा दर्जा हालात 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान शुमाल मशरकी और वस्ती बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, पंजाब, खिता पठवार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जक्खड़, आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दिफाई तनसीबात पर मुश्तइल हमलों में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। बड़ी फौज के सरबराह ने जुमेरात को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फिस्ताई मोदी हुकूमत की जानिब से श्रीनगर में ग्रुप 20 के इजलास के खिलाफ आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरियों ने मुकम्मल हड़ताल की। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम।
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर उर रशीद, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें फहद शिराज, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें नबीला शाहीन, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद रिजवान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा और निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम जुबैरी और तस्कीन जफर को आज का खबरनामा खत्म करने की इजाजत दीजिए।